Om Shanti. Good morning. Namaskar and Swagatam Suswagatam. Warm welcome to everyone who have joined in this unlimited platform to explore the secrets, the truth, and the hidden reality about the preachings of God in the ancient and auspicious scripture, Srimad Bhagavad Gita. Our today's facilitator is Brahma Kumar Rajrishi Basavaraj Bhaiji, the Divine Brother, who have been conducting sessions since long time. Today, we are having 38th session. This is the weekend series of training, special training in Srimad Bhagavad Gita. He is an expert, an author, a trainer, and also a research scholar. He has done agriculture, BSc in agriculture, MA in philosophy, MA in MSc in value-based education, PhD in philosophy, PhD in Srimad Bhagavad Gita, and he is the director of the instructions in value, spirituality, and yoga education. He is a social activist, president of National Sports Wing, Raj Yoga Education and Research Foundation, Vice President, International Congress of Social Philosophy, Dharwad, Vice President of Karnataka Darshana Parishad, Dharwad, and also is a director of Prajapita Brahma Kumari's Ishwariya Vishwavidyalaya, Hubli, Karnataka. He's also a founder director, Moral Spiritual Yoga Foundation of Yoga Education and Training Center, Brahma Kumari's Tapovan, Yellapur, Karnataka State. Honorary editor for Vishwa Navanirmana, Kannada Monthly Magazine, circulated to all those who can read Kannada and take benefit of it. He is distinguished with many awards. Karnataka state government in the year 1998 has honored him with Rajyotsava Award. Kuvempu has honored him with Vishwamanava Award. Rotary International District 3170 has honored him with Vocational Excellence Award. Mandala Karyalaya Emiganuru, Andhra Pradesh State has awarded him with Mulya Shikshana Mahantudu Award. Manaviya Mulyagala Sanchara Shikshaka Prashasti is an award given by Jagat Jyota Bashveshwara Jayanti Utsav Committee, Hubli. And he's also awarded with Mulya Shikshana Harikara Prashasti by Anigiri Tripura cities. He's also contributed a lot. Under his valuable guidance, the feature film of Shiva Yogi Akka Mahadevi has been produced. He has given various lectures, conducted training programs in TV, radio, and other print medias. He visited many countries to spread the spiritual, moral, and yogic knowledge of for the welfare of the humankind. Such a nice profile, such a noble and very constructive profile. As you listen to such people and you listen him in voice, you feel that he's really sharing his treasures. These treasures of wisdom are invaluable. As we listen to him, it looks like that he is also upgrading us and making us equal to him in understanding and having those treasures of jewels of wisdom. Let's welcome in this session 38. Today, especially, we will come to know what exactly is the Vibhuti Yoga,
speaking about God and the concept of omnipresence. Welcome you with this wonderful flowers. Here they are. As it is light drizzling and showering has started in Lagos, the flowers are happily blooming and blossoming. And those flowers which only blossom once in a year are fully coming with lot of happiness. See these flowers? भाई जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इन रंग बिरंगे खुशबूदार सुगंधित सुंदर फूलों से आपका स्वागत है इस अनलिमिटेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। इस सभा में सभी ऐसे खिले हुए फूल की तरह आपका इंतजार कर रहे हैं। खास करके जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने वाले फूल हैं, वो खास यहाँ विशेष बाबा के सेंटर के आंगन में उगते हैं। पता नहीं आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं। After 4 years, this particular plant has given flowers and the tree is full of flowers now. At least about, you can say, over 60, 70 flowers come every day now because it's drizzling. And you know, rest all are, you know, everything. So, welcome, Bhaiji. Could you please give spotlight to Bhaiji so that everyone can see? And you can put on gallery also. Everyone can open the videos and please wave your hand, hold your hand, clap your hand, whichever you want. भाई जी, ये फूल आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आज विशेष संडे का दिन सेंटर पे भोग लगा है और सभी को स्पेशल डोसा, चटनी, सांबार, फ्रूट्स और ग्रेप जूस के साथ सभी भाई बहन जो आए, लगभग क्योंकि लॉकडाउन है बहुत थोड़े आए, 25 लोग आए, तो उन सब की भी आपको स्वागत है उन सब के तरफ से। ओम शांति जी, वेलकम। ओम शांति, ओम शांति। सारी भगवद गीता में भगवान ईश्वर का महिमा अठारह अध्यायों में डिवाइड हो गया है। फिर भी भगवान ईश्वर का महिमा करने के लिए एक स्पेशल चैप्टर है, वो विभूति योग। जो विभूति योग है, तो ईश्वर के गुणगान करने का योग है। तो जो महर्षि हो, ऋषि हो, काव्य की रचना वाले हो, बहुत प्रयास करके विभूतियों को प्रेजेंट किया है, बहुत प्रयास करके विभूतियों को प्रेजेंट किया है। परमपिता परमात्मा ईश्वर ने ईश्वरीय विश्वविद्यालयों में अपना परिचय स्वयं दिया है। आप जानते हैं, जो भगवान अपना परिचय भगवद गीता में दिया है, इसमें कुछ श्लोकों में भी गीता में वर्णित है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। मैं भोक्त नहीं हूं, परंतु भोक्त हूं। मैं खाते पीते नहीं हूं, ना विकार भी स्वीकार नहीं करता हूं। वो तो खाता है, पीता है, जो भोक्त होता है। विकार गुण में जो जाता है वो भी भोक्त हो जाता है। मैं तो अभोक्त हूं, भगवान ने हमको सिखाया है।
मैं अभोक्त हूं, फिर भी सारी दुनिया में भक्ति करने वाला भक्त जो है वो पूजा करता है, जप तप करता है, यज्ञ आदि हवन करता है, परंतु उसका प्रार्थना तो स्वीकार करने वाला मैं भक्त हूं। उसको कल्याण करने के लिए मैं जो फ्रूट्स देने के लिए, फल देने के लिए, प्राप्ति देने के लिए मैं मालिक हूं। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरा, ऐसे ही भगवान का अत्यंत प्रोक्त ये भी है, योमाम अजम अनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम, मैं अजन्म हूं। जैसे देवतागण, मानव, असुर, ऋषि मुनि, जो भी पुरुष प्राणियां जन्म लेते हैं, मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, परंतु मैं अजन्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं अजन्म हूं, मैं जन्म लेने वाला नहीं हूं, मातृ गर्भ से मेरे को जन्म नहीं है, इसी कारण से मेरे को शरीर भी नहीं है। मैं अशरीरी हूं, अकाय हूं, अभोक्त हूं, अहिंसक हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ज्ञानेश्वर भी हूं। परमपित परमात्मा ईश्वर का महिमा अच्छी रीत से फर्स्ट जानने से जो भगवत गीता में विभूति योग है, उसके ऊपर चिंतन मंथन करने के लिए सबको इजी होता है। तो जो विभूति योग है, विभूति योग में जो काव्यकार ऋषि ने अत्यंत प्रयास करके परमात्मा का महिमा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, परंतु ऐसे नहीं हो सकता है। सारी महिमा जो किया है परमात्मा का होता है, क्योंकि जो श्लोक लिखा है महिमा करने के लिए, परमात्मा का महिमा करने के लिए, उसमें पौराणिक भी मिक्स है, प्रकृति के गुण भी मिक्स है। जिसमें पौराणिक मिक्स हो जाता है वो आध्यात्मिक से अलग हो जाता है, जो प्रकृति मिक्स हो जाता है वो आध्यात्मिक से अलग हो जाता है। बिना आध्यात्मिक जो भी आधार लेके भगवान का महिमा, वो सच्ची महिमा नहीं होता है। इसी कारण से ही भगवत गीता में ये बहुत मुख्य श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते। असद वस्तु जो होता है उसको गुणगान करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो ईश्वर नहीं। सद्वस्तु में जो आत्माएं हैं, पापात्माएं हैं, पुण्यात्मा है, महात्मा है, देवात्मा है, धर्मात्मा है, ये भी मानव जैसे शरीर लेके जनन मरण में आए हैं, उसको गुणगान करने को भी जरूरत नहीं है। परमात्मा को गुणगान करना एक ही बात होता है। इसलिए वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात हम लोगों के सामने रखा है, जो भी आप सोचो, जो भी आप डिसाइड करो, पहले आध्यात्मिक का सोचो, साथ साथ साइंस को नहीं छोड़ो। आध्यात्मिक विचार भी हो, साइंस भी हो, तब ये ठीक जजमेंट होता है। साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड, spirituality without science is lame.
इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ लेकर जाओ, प्रोग्रेस अच्छी हो जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी अच्छी हो जाएंगे, ऐसे वो कहाँ है। इसलिए आज हमें जो एक दो श्लोक को अपना विभूति योग में लेकर चिंतन मंथन करेंगे, इसके साथ साइंस भी हो, साथ स्पिरिचुअलिटी भी हो, परंतु असद वस्तु को थोड़ा दूर रखें, पुराण की चीज जो है उसको थोड़ा दूर रखें, चिंतन करें, तब हम लोगों को तो एक मार्गदर्शन मिल सकता है। मेरा आशा है वो मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में चिंतन मंथन होता है, साथ साथ गुणों को भी चिंतन मंथन होता है। अभी स्पिरिचुअलिटी में आत्माएं ये बहुत है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं है। आत्माएं बहुत है, करोड़ों करोड़ों आत्माएं है। इसी कारण से आत्माओं का गुणगान करने का ये अपना विभूति योग में आवश्यकता नहीं है। भगवान को गुणगान करने का आवश्यकता बहुत है, उसको स्वीकार करने का, उसको अपना धारण करने का। परंतु चैप्टर 10 विभूति योग में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः ऐसे कहा है। सर्व प्राणियों में मैं आत्मा हूं, ऐसे मीनिंग है। जितना जीव राशि होता है प्राणियों में, आत्मा के बिना प्राणी नहीं होता है वो। तो जो भी प्राणी संकुल होता है, प्राणी अनेक वेराइटी प्राणी होता है, ये प्राणियों में मैं हूं आत्मा, ऐसे ये श्लोक का मीनिंग है। आश्चर्य की बात है, इसको एक्सेप्ट करना, कैसे एक्सेप्ट करना, इसको डिलीट करना, ये सोचना है। आश्चर्य की बात है ये श्लोक का मुख्य बात को लेकर। जो प्राणियों में आत्मा है वो तो आता है जनन मरण चक्र में, परमात्मा जनन मरण चक्र नहीं होता है। जब परमात्मा को जनन मरण चक्र नहीं है, आत्मा सभी प्राणियों को जनन मरण चक्र है, इसलिए सभी आत्माओं में सभी प्राणियों में परमात्मा नहीं बन सकता है। इंडिपेंडेंट आत्मा हो सकता है। एलिफेंट इज अलग, टाइगर इज अलग, लायन इज अलग, जीब्रा इज अलग। कोई भी प्राणी हो, अलग अलग अपना फैमिली है, उसमें जनन मरण चक्र में वो आत्माएं फिर आते हैं जाते हैं। परमात्मा तो प्राणियों में प्रवेश करके आत्मा नहीं है, वो तो जन्म मरण से न्यारा भी है, वो तो सर्वव्यापी भी नहीं है। क्योंकि इतना वेराइटीज प्राणी होता है, प्राणी को देखने से दूसरा फैमिली जो होता है प्राणियों का, वो देखने को अलग अलग होता है। क्यों? तो जीन्स होता है, क्रोमोसोम्स होता है, फैमिली होता है, ये स्पीशीज अलग अलग होता है। इसी कारण से हमें इसको ये सोचना पड़ेगा, सर्व प्राणियों में प्राणियों का आत्मा है, परमात्मा तो नहीं है। अहम एव भूतानाम आदि मध्य अंत्य। ये श्लोक में कंटिन्यूटी ये होता है, ये सर्व प्राणियों में मैं हूं,
मैं हूं आदि मध्य अंत की रहने वाला मैं हूं, ऐसे होता है। जो उत्प्रेक्ष का बात होता है इधर परमात्मा को बताने के लिए, उत्प्रेक्ष, क्योंकि जो प्राणी है आदि मध्य अंत माना क्या होता है, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, डेथ होता है। ये आदि मध्य अंत भगवान को ऐसे नहीं होता है। तो ना बर्थ होता है, ना ग्रोथ होता है, ना डेथ होता है, क्योंकि योमाम अजम अनादिंच वेति लोक महेश्वरम, वो तो भगवान अनादि भी है, अविनाशी भी है, शाश्वत है, अमर है। वो तो आत्मा ये जो है वो भी जनन मरण चक्र में फिरने के कारण इसको आदि मध्य अंत कहेंगे। इसलिए ये श्लोकों में हमें थोड़ा सोचने से, डिटेल जाने से, कोई प्राणी का तन में भगवान नहीं होता है। दूसरा बात यह है, कोई प्राणी जो जनन मरण चक्र में आते भगवान नहीं, ऐसे हो सकता है। इसी कारण से परमात्मा हर एक प्राणी में नहीं हो सकता है, तो क्योंकि भगवान का महिमा अलग होता है, प्राणियों का महिमा अलग होता है। ये कारण से हमें ये बात को विशेष सोच के डिसाइड करने का होता है। भगवान का महिमा, प्राणियों का महिमा, आत्माओं का महिमा, परमात्मा का महिमा तो टैली करना, डिफरेंशिएशन से देखना, ये काम हमारे अभी जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी को रख के बॉटनी, जूलॉजी को रखकर। दूसरा श्लोक में भगवद गीता में ये बात बताया है, आदित्यानाम अहम विष्णु हूं, ज्योतिषाम अंशुमान रवि, मरुताम अस्मि मरीचि, नक्षत्राणाम अहम शशि, ऐसे वर्णित है। इधर ये श्लोक में भगवान का महिमा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया है, बहुत प्रयत्न किया है, परंतु प्रयत्नों में स्पिरिचुअलिटी है, सोचना है। परमात्मा का यथार्थ महिमा होगा, ये सोचना पड़ेगा। पुराण में जाने से स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेंगे। पुराण में देवताओं का विशेषता ज्यादा होता है। ये तो द्वादश आदित्यों में माना द्वादश सूर्य होता है। हमें देखता है गैलेक्सी में नजदीक में एक सूर्य का, परंतु यह श्लोक में ऐसे कहा गया है, गैलेक्सी में 12 सूर्य है, 12 सूर्य है। एक एक सूर्य का नाम भी है, एक धाता, मित्रा, आर्यमा, रुद्रा, वरुणा, सूर्य, भगा, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ऐसे 12 नाम पुराण में जो है, वो तो ये इसको लेकर ये श्लोक बनाया है। परंतु ये जो भी 12 है, ये सारी देवता ये है, इसको शरीर है। शरीर होने वाला भगवान नहीं होता है, क्योंकि मैं हूं अशरीरी, मैं हूं अकाय। उसको 5 तत्वों से जो क्रिएटेड बॉडी नहीं होता, माता पिता नहीं होता, जन्म मरण चक्र नहीं होता। ये देवता गण है। देवता गण माना 12 जो सूर्य है, आदित्य है, द्वादश आदित्य है, इसमें मैं हूं विष्णु, ऐसे
भगवान ने कहा गया है, ऐसे मैं समझ के इसको एक्सेप्ट करे। तो इसका पीछे दूसरा क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है? तो 12 सूर्यों में एक सूर्य जो विष्णु है, विष्णु एक मैं हूं, दूसरा नहीं है। जो एकादश सूर्य जो होता है मैं, वो नहीं है, मैं सिर्फ विष्णु है। ऐसे कहने से, इसको एक्सेप्ट करने से इसके आंसर ये होता है, भगवान विष्णु होने से दूसरा एकादश जो सूर्य जी होता है वो भगवान नहीं होता है, माना भगवान सर्वव्यापी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है इधर। जो 11 सूर्य जो होता है वो उसमें भगवान नहीं होता, क्योंकि वो भगवान नहीं है। इसी कारण से हमें इसको सोचना है, परंतु सोचने के समय दो बात अपना स्पिरिचुअल नॉलेज को साथ रखना है। भगवान को शरीर नहीं है, भगवान तो जन्म मरण चक्र में भी नहीं आता है, भगवान शादी भी नहीं करता है, भगवान को स्पेशल ऐसे शरीरदारी बच्चे भी नहीं होता है। ये देवता पुरुष जो होता है वो तो अलग ही है। परमात्मा का महिमा जो होता है अलग है। वो तो परमात्मा, इसी कारण से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होता है। ये है आदित्यानाम अहम विष्णु हूं। जो आदित्य 12 होता है, द्वादश आदित्य होता है, उसमें विष्णु ऐसे मीनिंग होता है। ज्योतिषाम अंशुमान रवि, मना जो रश्मि होता है वो सूर्य से आता है, चांद से आता है, नक्षत्र से आता है, दूसरा कोई ग्रह से आता है, ग्रह। इसी कारण से ज्योतिषाम अंशुमान रवि, जो भी प्रकाशमान वस्तु गैलेक्सी में है उसमें मैं हूं रवि, माना आदित्य, माना सूर्य। पहले लाइन में ये था द्वादश में मैं विष्णु हूं। ये सेकंड लाइन में ये होता है, तो जो भी प्रकाश वस्तु है उसमें मैं हूं सूर्य। सो दूसरा जो भी वस्तु प्रकाशमान नहीं है वो तो भगवान नहीं होता है। इसका मीनिंग इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग। इस श्लोक में, इस सेंटेंस में तो अपना खुद ही मीनिंग आ जाता है। तो अप्रकाशमान वस्तु भी होता है, प्रकाशमान वस्तु भी होता है। जो प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य मैं हूं, दूसरा नहीं हूं, ऐसे भगवान कैसे सर्वव्यापी बन सकता है? आज की जो भी चिंतन मंथन परमात्मा सर्वव्यापी है नहीं है, ऐसे बारे में सोच सोच के हमें इसको चिंतन मंथन करेंगे। इसी कारण से ये श्लोक में अप्रकाश वस्तु, प्रकाश वस्तु, प्रकाश वस्तुओं में भगवान एक होता है सूर्य, दूसरा प्रकाश जो भी होता है ये तो स्टार्स होता है, दूसरा ग्रह होता है, नवग्रह होता है, वो तो मैं नहीं हूं, ऐसे मीनिंग आ जाता है। अप्रकाश वस्तु तो आप जानते हैं, पंचतत्व, पानी हो, अनिल हो, पृथ्वी हो, जो भी हो वो तो वो भी मैं हूं नहीं हूं, ऐसे मीनिंग इधर इनडायरेक्टली आ जाता है। इसी कारण से भी परमात्मा सर्वव्यापी नहीं होता है, सर्वांतर्यामी नहीं होता है। आप तो सोचिए। नेक्स्ट ये होता है मरुताम अस्मि मरीचि। जो मरीचि महर्षि है वो मैं हूं। मरुदगणों में मैं हूं मरीचि महर्षि।
मरुदगण जो होता है उसमें 3-4 मरुदगण होता है। मरीचि का शब्द हमें सोच के लेने से उधर 4 मरीचि होता है, मरुदगण 3 होता है, मरीचि के नाम 4 होता है। एक मरुदगण है ब्रह्मदेव का मानस पुत्र। ब्रह्मदेव का मानस पुत्र का नाम ही मरीचि महर्षि है। दूसरा मरीचि भी है, स्वयंभु मनु की सृष्टि में 10 प्रजापति जो होता है उसमें एक महर्षि मरीचि होता है। तीसरा जो होता है मरीचि माना मीनिंग क्या होता है, तो रावण का एक मित्र भी मरीचि होता है रामायण में। ऐसे मरुदगणों में मरीचि शब्द आता है, परंतु मरीचि शब्द में महर्षि भी होता है, असुरों का फ्रेंड भी होता है, तो साथ साथ मरीचि इंडिपेंडेंट शब्द को मीनिंग लेने से प्रकाश ऐसे मीनिंग आता है, प्रकाश। जो मरुदगणों में मैं हूं मरुचि मना, जो 3 महर्षि का नाम मैंने बताया, एक ब्रह्म का मानस पुत्र, एक स्वयंभू मनु की सृष्टि में 10 प्रजापतियों में एक महर्षि मरीचि है। ये दोनों मरीचि में मैं कौन सी मरीचि है ये सोचना पड़ेगा। तो मरीचि मना ही प्रकाश होता है, मना ये दोनों मरीचि मैं नहीं हूं, ये प्रकाश जो होता है मैं वो हूं, ऐसे मीनिंग आ जाता है। तो प्रकाश जो वस्तु है तो अचेतन भी होता है, चेतन भी होता है। जो आत्माएं अनेक है वो भी चैतन्य शक्ति है, स्वयं प्रकाश है वो। दूसरा जो चांद होता है, सूर्य होता है, तारागण होता है, दूसरा दूसरा जो प्रकाश होता है वो तो वस्तु है, चेतन नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा ये कौन सा प्रकाश, कौन सा मरीचि भगवान हो सकता है। इसलिए इधर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सपोर्टिव कोई सेंटेंस नहीं होने के कारण हम ये सोच सकता है, एक को हमें मरीचि समझने से दूसरा कुछ जो है उसमें परमात्मा नहीं है, तो इसी कारण से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, सर्वांतर्यामी नहीं। तो परमपिता परमात्मा जो है ये दुनिया में सब भक्तिगण भक्तात्माएं प्रार्थना करता है, परमात्मा को महिमा करता है। इसी कारण से ये मरीचि की अलावा एक शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति है, वो परमात्मा है, ऐसे में समझ सकता है। नक्षत्राणाम अहम शशि ही ऐसे होता है। जो भी अपना गैलेक्सी में देखने से स्टार्स बहुत अनगिनत स्टार्स, जो अनगिनत स्टार्स होता है उसमें मैं हूं चांद, ऐसे श्लोक का मीनिंग होता है। मैं हूं चांद, तो भगवान चांद होने से हमें यह भी सोच सकता है दूसरा जो स्टार्स है, नक्षत्र है, वो तो भगवान नहीं है, वो तो चांद मेरा नाम है, मैं चांद स्वरूप में हूं, ऐसे होने से तो मीनिंग में ये बात आ जाता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा सर्वांतर्यामी नहीं।
हमें ये भी सोचे ओ चांद भी भगवान है ऐसे एक्सेप्ट करे, इसमें एक डाउट आता है। क्योंकि आप जानते हैं साइंस विदाउट स्पिरिचुअलिटी इज ब्लाइंड, स्पिरिचुअलिटी विदाउट साइंस इज लैम्प। तो इधर स्पिरिचुअलिटी साथ लेके साइंस को साथ लेके सोचने से तो ये चांद है मून है वो तो जड़ शक्ति है, जड़ शक्ति। ये चांद को स्वयं प्रकाश होने का शक्ति, जब सूर्य की किरणें चांद ग्रह के ऊपर आता है तब वो प्रकाशमान होता है। नहीं होने से चांद को स्वप्रकाश शक्ति नहीं है। ये तो विज्ञान तो अपने साथ है। इसी कारण से चंद्र भी परमात्मा नहीं बन सकता, ये जड़ वस्तु है ना स्वप्रकाश वस्तु है। सूर्य तो स्वप्रकाश वस्तु है, चांद तो स्वप्रकाश वस्तु नहीं है, ये भी जड़ ग्रह है। इसी कारण से भगवत गीता के जो भी महिमा होता है भगवान का यथावत महिमा नहीं होता है। प्रयत्न तो है उसका गुणगान करने के लिए, उसको प्रख्यात करने के लिए, परंतु यथारीति हमें सोचे ये मीनिंग आ जाता है। भारत में जो भी भक्त है, ये भक्त मंत्र बना के तो जो नवग्रह को उपासना करता है, मंत्र बना के नवग्रह को उपासना करता है। आदित्याय च सोमाय च मंगलाय च बुधाय च, आदित्याय च सोमाय च, आदित्य मना सूर्य जी, सोमाय मना चंद्र है। इसको प्रार्थना में करते हैं श्लोक में, आदित्याय च सोमाय च मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः, ऐसे हमें प्रार्थना करते हैं। अभी आप जानते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट भी है, पुराण भी आप जानते हैं। ये तीनों अपना साथ रख के प्रकृति को भी आपका साथ रखो, तभी इसका डिसीजन आप स्वयं दे सकता है। जो आदित्य है, भले एक आदित्य हो, 12 आदित्य हो, 12 आदित्य हो, एकादश आदित्य हो, आदित्य ये एकादश द्वादश के आदित्य के भी अलावा फिर भी गैलेक्सी में हो, ये सारी जड़ वस्तु है। स्पिरिचुअल पावर उसमें नहीं है, ये अपना ही पावर है। जैसे मैग्नेट पे पावर है होता है, ऐसे हर एक ग्रह में पावर होता है, ऐसे नहीं होता है। परंतु ये तो जड़ शक्ति है, वो तो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। इसी कारण से हमें जो भी प्रार्थना करें, मंत्र बतावे, अपना इष्टार्थ को तो उधर मांगे, वो देने की शक्ति उसको नहीं होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता है, तो जड़ ग्रह है वो। इसी कारण से हमें सोच सकता है, हमको भगवान की यथा स्थिति, यथा रूप, यथा महिमा नहीं जानते हैं, सच्ची महिमा भगवान को नहीं जानते हैं। जो भी पुराण में आता है, जो भी प्रकृति में आता है, सब भगवान ये है, ये है, ये है, इसे हमें कहकर अभी तक पहुंच गया है। मैं ऐसे अनुभव करता हूं। आप आगे आइए, दूसरा श्लोक जो होता है, तो वो श्लोक में ये बात अपना साथ आता है। वेदानाम अस्मि सामवेदम, देवानम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम अस्मि मनः,
भूतानम अस्मि चेतन, ऐसे श्लोक में होता है। ये श्लोक के जो 4 सेंटेंस होता है, इसमें हमें ये को देखेंगे, वेदानाम अस्मि सामवेदः। तो जो चतुर्वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद, ये चतुर्वेदों में सामवेद मैं हूं माना 3 अलग अलग जो वेद है वो तो मैं नहीं हूं, ऐसे मीनिंग आ गया। एक वेद मैं हूं माना 3 वेद मैं नहीं हूं, मीनिंग आ गया। ऑटोमेटिक मीनिंग कोई बच्चे भी अंडरस्टैंड कर सकता है। परंतु ये 4 वेदों में प्रथम वेद ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रथम, नेक्स्ट लिखा है यजुर्वेद, थर्ड लिखा है सामवेद, फोर्थ अथर्वणवेद। ये स्टेप्स है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद। एक वेद भगवान होने से 3 वेद वो तो भगवान नहीं है, ऐसे बोलने से परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वांतर्यामी भी नहीं है। सारे वेदों में भगवान व्यापक नहीं है, ऐसे मीनिंग हो जाता है। ये तो इसको हमें सोच के डिसाइड आप ही कर सकता है, तो दूसरों को मदद नहीं चाहिए। भगवान का महिमा के साथ लेकर, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेकर हमें सोचना पड़ेगा। देवानाम अस्मि वासवा, ये भारत देश में 33 करोड़ देवताएं हैं। 33 करोड़, ये सारी पूजनीय देवता, ऐसे अपने पुराण कहा है। सारी देवताओं को इधर प्रेजेंट करने के लिए चित्रों में तो नहीं होता है, इसलिए कुछ सबको जो मालूम है वो चित्र को आपके सामने रखा है। जो 33 करोड़ देवताएं हैं, ये देवताओं में मैं हूं इंद्र, ऐसे मीनिंग है ये श्लोक में। देवानाम अस्मि वासव। इसी कारण से एक भगवान इंद्र हो जाने से दूसरा जो देवता ये है वो तो भगवान नहीं है, ना उसमें भगवान है, ना खुद भगवान, अनेक देवता नहीं है। तो इसी कारण से सोचने से अलग अलग देवताएं है, वो तो इंडिपेंडेंट है, माना तो भगवान एक वो भी इंडिपेंडेंट है, वो तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है। स्वयं ये श्लोक परमात्मा सर्वव्यापी है ऐसे नहीं बोलेंगे, सर्वांतर्यामी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी कारण से हमें ये श्लोक में भगवान का सच्ची महिमा, रियल एट्रीब्यूट्स कौन सा है, ऐसे हमें सोचना है, फिर सोचना ही पड़ेगा। मैं ऐसे समझता हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, जो सारी आत्माएं हैं, प्राणियां हैं, प्राणियों में मैं हूं चेतन शक्ति, ऐसे होता है। ये बात को ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो भगवान इंडिपेंडेंट है, जन्म मरण चक्र में नहीं होता है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है, वो अनादि अविनाशी है, ये तो आपको मीनिंग ऑलरेडी मालूम ही है। इसी कारण से भूतानाम अस्मि चेतना नहीं बन सकता है, परंतु इंडिपेंडेंट आत्मा समझने से ठीक है, बनता है। परंतु मैं हूं सभी प्राणियों में भगवान, ऐसे सोचने से वो मीनिंग निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो अजन्म है, अयोनिज है, अकाय है, अभोक्ता है, अहिंसक है। प्राणियों में सात्विक फूड वाला भी है, तामसिक फूड वाला भी है, वो तो वेजिटेरियन फूड वाला भी है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड वाला भी है प्राणी लोक में।
आप जानते हैं। इसी कारण से अहिंसक परमात्मा है, अभोक्त परमात्मा है, तो परमात्मा प्राणियों में प्रवेश करके हिंसक नहीं बन सकता है। इंद्रियाणाम अस्मि मना, ऐसे भी इस श्लोक में एक भाग है। इंद्रियों में मैं हूं मन, ऐसे मीनिंग है। इंद्रिय शब्द आने से इसमें हमें सोचना है, दो प्रकार की इंद्रिय है। एक है ज्ञानेन्द्रिय, एक ग्रुप ज्ञानेन्द्रिय है, दूसरा ग्रुप होता है कर्मेंद्रिय है। एक ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ये तो इंद्रिय है, शरीर का एक पार्ट है, ये तो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, लिंक्ड विथ ब्रेन सेल्स है, नर्वस सिस्टम है। तो इसी कारण से तो इंद्रियों में मैं मन हूं ऐसे बोलने से, तो हर एक इंद्रियों में मैं मन हूं बोलने से, तो इंद्रिय में, इंद्रिय एक अंग है, ये स्थूल जैविक पार्ट है। तो स्थूल जैविक जो पार्ट है, देखिए नाक है, उधर टंग है, आंख है, कान है, हाथ है, ऐसे तो जो ज्ञानेंद्रिय है, ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इंद्रिय इंडिपेंडेंट होगा, परंतु इसका शक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है तो ब्रेन से, ब्रेन में थिंकिंग पावर है, मन उधर बैठा है ब्रेन में। जीव शक्ति ये बॉडी की जो भी अंग है उसमें है, परंतु मन शक्ति जो है वो तो ब्रेन में है। डिसाइडिंग पावर, थिंकिंग पावर, एक्टिंग पावर, ये सारे उधर होता है। इसी कारण से इंद्रियाणाम अस्मि मनः, ये तो नहीं बन सकता है। तो इसी कारण से जो भी पंचेंद्रिय का, पंच कर्मेंद्रिय हो, पंच ज्ञानेन्द्रिय हो, तो इंद्रिय ये अंग है, भगवान इसका पार्ट एंड पार्सल नहीं है, ये भी मीनिंग इधर आ जाता है। ये सारी इस श्लोक में हमें एक ही उद्देश्य से हमें चिंतन मंथन कर रहा हूं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्या है, ये दोनों में हमें सोचना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे इस श्लोकों में मीनिंग अभी तक हमें सोचा है। तो क्योंकि स्वयं खुद ही ये सेंटेंसेस जो श्लोक में है वो इसका मीनिंग निकालते हैं, वो तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा का महिमा अलग है। इसी कारण से मैं आज, मेरा साथी भाई बहने जो आध्यात्मिक चिंतक है, भगवत गीता का चिंतक है, वो तो उसके साथ में मेरा विचार को अपना भाई बहनों का साथ रखा हूं। वो लोग सोच सकता है क्या भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे सोच सकता है। भगवत गीता में भगवान को बारे में ये बात बताया है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा परम धाम निवास है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये तो भगवान परम धाम में है, श्रेष्ठ धाम है भगवान निवास, परम धाम। मैं उधर हूं, उधर कोई न सूरज का, न चांद का, न अग्नि का, न कोई स्टार्स का जो रश्मि उधर नहीं पहुंचता है। मैं इतना विशाल धाम में, परम धाम में आत्माओं के साथ मैं हूं, ऐसे मीनिंग होता है। मेरा मीठे मीठे भाई बहने, ज्ञानी आध्यात्मिक वाले, साइंटिस्ट वाले भाई बहने, मेरा विचार आपका सामने रखा हूं। हम सक्षर न्याय के साथ आप डिसाइड करके परमात्मा का अच्छी से जान कर परमात्मा का नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बन जावे,
वो मेरा आशा है। सभी भक्तों को तो जिज्ञासुओं को मेरा प्रणाम बोल के ये परमात्मा का यथार्थ महिमा जानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। Thank you, Bhaiji. It looks new, and when you explain everything, it's unknown but well-known things looks like. About the Vibhuti Yoga that you have explained, it's really amazing to know that from time immemorial, human souls have been really searching for God and they're trying really hard to understand Him. And depicted in the ancient scriptures about the praise of God, praising His greatness, but then human beings are human beings with their limited understanding. So the cycle has to turn, and God Himself has to come to give His introduction by Himself. And here we are all fortunate enough to seek this introduction, to understand Him as He is, what He is, and then connect to Him in order to make ourselves, purify ourselves. Thank you so much, Bhaiji, for this great, relevant understanding today that you have given to all of us. Those who have any question can unmute themselves or type in the chat box. Brother, we just took that, right off with love, right on his time with love, as he's present physically to answer our questions and queries, if any. And I humbly grateful and thankful to Bhaiji for today's rendition. Kindly take us into a guided meditation, please. ओम शांति। मेरा पिता परम पिता परमात्मा है। मैं आत्मा हूँ। मैं भी आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। मेरा पिता परम पिता सर्व आत्माओं को पिता, वो भी प्रकाश स्वरूप है, बिंदु स्वरूप में। वो भी चेतन शक्ति है, मैं भी चेतन शक्ति हूँ। मेरे को मन बुद्धि संस्कार है, मैं आत्मा हूँ। परमात्मा को भी मन है, बुद्धि है, संस्कार है, वो परमात्मा है। मैं हूं जनन मरण चक्र में। मेरा पिता परमात्मा जनन मरण चक्र से नहीं आ रहा है। मैं हूं अल्पज्ञानी। परमात्मा है सर्वज्ञ, परमात्मा है ज्ञानेश्वर, ज्ञान सागर। परमात्मा परम धाम निवासी है। कोई प्रकृति का भाग जो पार्ट है वो परमात्मा नहीं है। जो भी देवता गण है वो तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा स्वयं चेतन शक्ति है। ऐसे ऐसे मेरे को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेरा दर्शन स्वदर्शन
परमात्मा का दर्शन आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा दर्शन कराया। आप हो मेरा पिता परमात्मा, आप हो मेरा पिता परमात्मा ज्ञानेश्वर। मैंने शास्त्रों को भी पढ़ा, पुराणों को भी पढ़ा, उपनिषद को भी पढ़ा, वेदों को भी देखा। मेरे को यथार्थ परिचय नहीं मिला, यथार्थ परिचय नहीं मिला। बाबा, आपने मेरा परिचय भी दिया, आपने आपका परिचय भी दिया। सारी दुनिया में कितना आचार्य है, ऋषि महर्षि है, संत महंत है, विज्ञानी भी है, जो भी है उसका छोड़ के मैं साधारण आत्मा, मेरे को आप सेलेक्ट करके मेरे को सच्ची ईश्वरीय ज्ञान दिया। मेरा भाग्य को मैं देखने से मेरे को वंडर लगता है, वंडर लगता है। बाबा, आप मेरे को प्यार करता है, क्या मैं आपको प्यार करता हूं? मेरे को दोनों भी मालूम नहीं है। मैं समझता हूं बाबा, मैंने आपको ढूंढा, कहां भी नहीं मिला। आप जानता है मैंने ढूंढा, आपको ढूंढा, इसलिए आपने मेरे को ढूंढ के मेरे को विद्यार्थी बनाया, बच्चे बनाए। आपका जो प्रॉपर्टी है, नॉलेज, त्रिकाल ज्ञान, सृष्टि की आदि मध्य अंत की ज्ञान, तीन कालों का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञान, तीन लोकों का ज्ञान, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परम धाम की ज्ञान, प्रकृति पुरुष परमात्मा के ज्ञान। तो बाबा, मेरे को आपने स्पेशल स्टूडेंट बना के मेरे को नॉलेज दिया। मैं प्राणी समान थे, अभी मानव बन गया, क्योंकि मानव जन्म होने से भी जैसे प्राणी जैसे भगवान को नहीं समझता है, माना तो प्राणी जैसे जन्म है। जब भगवान को समझने से मानव का जन्म होता है। माननशील मानव। हाँ हे बाबा, दुनिया में कितना करोड़ आत्मा है, परंतु आपको पहचानते नहीं। आप स्वयं पधार कर ज्ञान दे रहा है। ईश्वरीय निमंत्रण सबको है, परंतु वो भाग्यशाली आत्मा नहीं है। बाबा, आप मेरे को सेलेक्ट कर दिए, मेरे को आपने अपना प्रॉपर्टी दे दिया।
आप शांति सागर है, शांति दिया। प्रेम सागर है, प्रेम दिया। दया सागर है, मेरे ऊपर दया रखा। कृपा सागर है, मेरे ऊपर कृपा रखा। आप पतित पावन है, मेरे को पावन बनाया। आप परम पवित्र है, मेरे को पवित्र बनाया। आप तो ज्ञानेश्वर है, मेरे को ज्ञान स्वरूप बनाया। हे प्रभु परमपित परमात्मा, स्वयं परमात्मा, आपने मेरे को क्या क्या गुणों से श्रृंगार किया, मैं इसका रिटर्न आपको क्या दे सकता हूं? मैं कुछ नहीं दे सकता। परमपिता परमात्मा, बच्चे बाप को क्या दे सकता है? बच्चे बाप को एक्सेप्ट करता है, बस सब कुछ बाबा देता है। इसलिए आपको सब कुछ देने वाला, बिना मांग देने वाला आप मेरे को मिल गया। मेरा भाग्य है, मेरा महान भाग्य है। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम। Om Shanti Bhaiji. Brother Francis says, thank you for the wonderful meditation. Very interesting presentation today. धन्यवाद। Thank you, Bhaiji, for all that wonderful things. And we are very happy that we're going to meet in the coming weekend as well. So everyone is very content. I think everyone is saving time and not asking any questions because everyone has understood that all their questions and queries will be cleared as we move further in our journey. Thanks for being together. Thanks for your time and understanding. Bhaiji, a special thanks to you. We'll meet in the upcoming weekend and explore more secrets about the God of the Gita and the Gita itself. मेरे को बहुत Om Shanti. meditation को Haji, करने को मेरे को चांस दिया, आपको विशेष नमस्कार है। देखो अपना भाई बहन मिला दिया। चांसलर आप हो, हमें चांस दिया ये सब सुनने के लिए, समझने के लिए। सबको नहीं तो ये बातें दिया है, सभी भाई बहनों को मिलने के लिए चांस दिया है, इसलिए तो आपको धन्यवाद। नहीं भाई जी, ये हमारा भाग्य है कि आपका समय हमको मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपके साथ पूरे टीम को भी बहुत शुक्रिया कि आपसे मिलाने के लिए ये टेक्निकली भी कनेक्ट किया। कृष्णा भाई, रश्मि बहन, सभी बहनें, सभी भाई, उन सबको भी तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद है, धन्यवाद। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नमः शिवाय। ओम शांति।